Good morning, students. The next topic is power of directors. The directors manage and supervise the overall affairs of the company. Therefore, they enjoy all such powers which are necessary for the effective control and management of the company's affairs. Now, these powers are divided into two, that is general powers and specific powers. Now, general powers are given under section 179 of the new act and 291 of the earlier act of 1956. So the board of directors of a company enjoy all such powers as are enjoyed by the company. It means that the board of directors are authorized to do and exercise all those powers which our company is authorized to do so. यानी कि चूंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, so naturally their powers are as wide as that of the company. So naturally, the board of directors of a company enjoys such powers as are enjoyed by the company, and their powers are as great as that of the company. Then the power of board of directors are as great as those of the company. Now, general powers are limitation on directors' power. The board of directors may exercise its powers subject to the provision of MOA and AOA or the rules made in the general meeting of the company. It means that the directors cannot go beyond what is written in the MON article of the company. यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों जनरल पावर्स में कि whatever power are given in the memo and article of the company, no director can go beyond the preview of those, right? Then board of directors cannot exercise those powers which are required to be exercised by the shareholder in the general meeting of the company. Obviously, even if they are the shareholders of a company, then also they cannot exercise their powers as a shareholder. They will only exercise that of being a director. That's it. Other important points are the individual director have only such powers which are given to him by the MOA or AOA of the company. Right? For example, an individual director has no authority to file a suit on behalf of the company unless power is specifically given by the board of directors by passing a resolution in this regards. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना होकर कंपनी के बिहाफ पे ही केस फाइल कर सकते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल which shows that whatever has been written in the MON article, they can exercise those powers. Now coming to, these were the general powers. तो ये हमारी समझ में आ गया लिमिटेशन क्या है और उसमें अदर पॉइंट्स क्या है. तो जो भी है जनरल पॉइंट्स में यही है कि भाई मेमोन आर्टिकल के प्रीव्यू के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते. स्पेसिफिक पावर्स आर अंडर 179(3) and under 292 of the Act of 1956. These specific powers can be exercised by the board only by means of resolution passed at the board meeting. तो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद ही ये पावर्स एक्सरसाइज किए जा सकते हैं. राइट? सो स्पेसिफिक पावर्स आर गिवन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग. स्पेसिफिक पावर, पहला है द पावर टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी अनपेड ऑन द शेयर्स. जो मनी अनपेड ऑन द शेयर्स है, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर जो आपने समझाया था मैंने, तो वो पैसा कॉल कर सकते हैं. ये पावर उनकी स्पेसिफिक पावर्स है. देन द पावर टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिवेंचर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया. यानी कि सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स जो एक तरह से लोन गिवर्स होते हैं, जैसे लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स में करते हैं, डिवेंचर में करते हैं, तो दे हैव द पावर टू इशू दीज. देन द पावर टू बोरो मनी. ऑब्वियसली ये बोरिंग पावर्स में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. The board of directors have the power to borrow money from outside, that is bank, financial institutions, all other external agencies, right? The power to invest the fund of the company, obviously they have the power to whatever fund, चाहे वो शेयर होल्डर्स का हो, चाहे वो बैंकों से लिया गया हो, उसको इन्वेस्ट करने की उनकी पूरी अथॉरिटी होती है. The power to grant loans or give guarantee or provide security in respect of a loan. So उनको पावर है लोन देने की, गारंटी देने की किसी दूसरी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को, और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लोन. लोन के तौर पे भी वो एज सिक्योरिटी खड़े हो सकते हैं. ठीक है जी. छठा है द पावर टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट.
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो जो मेन होते हैं, दैट इज द बैलेंस शीट एंड द P&L अकाउंट, उनको अप्रूव करना, उनको साइन करना, ये उनकी पावर में, बोर्ड की पावर में होती है। और जो बोर्ड्स की रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लगती है, वो भी वो स्पेसिफिकली दे सकते हैं। द पावर टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कि दे हैव द पावर टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस। एक यूनिट है कंपनी का, हमने फंड रेस किया, आईपीओज और निकाले मार्केट में, और हमने कंपनीज को के दूसरा प्लांट खोल लिया, तो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, वो पावर है उनके पास। देन द पावर टू अप्रूव एमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनियां मिल जाए और एक हो जाए। मर्जर का मतलब दे में रिटेन देयर ओरिजिनल नेम्स, टू कंपनीज, एंड दे मर्ज टुगेदर फॉर अ कॉमन एंटिटी। और रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, वो भी उनकी पावर में है। देन द पावर टू टेक कंट्रोल ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ कंट्रोल और सब्सटैंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी। किसी कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना, यानी कि उसके 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेना, या उसको कंट्रोल करना, या सब्सटैंशियल स्टेक यानी कि उसके शेयर्स खरीद लेना, ये पावर भी उनके पास है। द पावर और एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा और भी कोई मैटर हो सकता है जिसपे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जा सकता है और वो उनको ग्रांट करी जा सकती है। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव डन। सो दिस पावर, general and specific power of the company is done.